إسرائيل خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ ایک بار پھر اس نے فضل بخش دیا کہ آج شام ہم سب مل کر خدا کے نام کو جلال دے سکیں۔ میں شکر گزار ہوں باپ، بیٹے، روح القدس کا، ان ساری نعمت و برکتوں، صحت، تندرستی، سلامتی کا۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ وہ آج مجھے یہاں لاہور سلامتی سے لایا تاکہ اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر خداوند کے نام کو مبارکباد کہہ سکیں اور اس کی پرستش اور اس کی عبادت کر سکیں۔ میں شکر گزار ہوں بھائی آصف کا، ان سارے ارینجمنٹس کے لیے، اسٹیفن کا جو آج ہمارے ساتھ بھی ہے، سلیمان کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم خداوند کے بہت مشکور ہیں خدا کے خادم بھائی سیمول پال کا، جن کا تعلق LRI لینگویج ریکارڈنگ منسٹری سے ہے۔ آج وہ حمد و ثنا میں ہماری رہنمائی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ خداوند کا کلام بھی شیئر کریں گے۔ آئے ہم اپنے سر جھکائیں اور جیسا ہم نے گنگنایا خدا کی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ مل کر شیما اسرائیل ادونائی الوہیم، تو آئے ہم الوہیم پاک یہوہ خدا کو مبارک کہیں گے۔ آئے ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں گے۔ اے باپ، ہم تجھے مبارک کہتے ہوئے تیری بارگاہوں میں آتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں خدا، اس بات کا اقرار کرتے ہیں تو ہی عزت، تمجید اور بزرگی کے لائق ہے خدا۔ میں اپنے ان تمام بہن بھائیوں کے لیے جو آج اس وقت ہمارے ساتھ اس عبادت میں شریک ہیں، جو شریک ہو رہے ہیں، جو ہونے کو ہے اور جو بعد میں اس ویڈیو کو دیکھیں گے، ان سب کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں خدا۔ اے روح پاک، ہم آپ کے محتاج ہیں، آپ کے رحم کے، آپ کے فضل کے، آپ کی حکمت کے، آپ کی تاثیر کے۔ بڑا کام کر جب تیرے لوگ اس میں عبادت میں شریک ہوتے ہیں۔ آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو سکے۔ تیرے خادم کے لیے، تیرے پرستاروں کے لیے، اپنی پوری ٹیم کے لیے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ ہم اپنی ساری فکریں تجھے دیتے ہیں کیونکہ تجھے ہماری فکر ہے خدا۔ سارا جلال تیرا ہے اور ہم تجھے دیتے ہیں، اور یہ دعا اپنے نجات دہندہ خدا یسوع کے نام مانگتے ہیں، آمین۔ میں خدا ان کا شکر گزار ہوں۔ آج ہماری رفاقت بھائی سیمول پال اور ان کی ٹیم اور ان کی فیملی کے ساتھ ہوئی، اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ آج ہمارے ساتھ مل کر خداوند کے نام کو جلال دیں۔ سو پہلے وہ اپنی ٹیسٹمنی شیئر کریں گے ہمارے ساتھ، اور اس کے بعد پھر وہ حمد و ثنا میں ایک بڑا خاص گیت، جب وہ سعودیہ کے دبئی کے صحرا میں تھے تو خدا نے ان کو یہ گیت دیا، وہ ہمارے ساتھ اس گیت کو شیئر کریں گے۔ آپ آج ہی ہم نے یہ ریکارڈ کیا ہے اور آپ اس کو ہمارے یوٹیوب چینل سے بھی دیکھ سکتے ہیں، جس کا نام The Ambassadors of Christ in پاکستان ہے، اور یہی گیت آپ بھائی سیمول پال کے چینل سے بھی، سیمول پال کے نام سے ہے یوٹیوب پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ضرور یاد رکھیں کہ ہم ہر
हफ्ता की शब, जुमेरात की शब 9 बजे उर्दू इबादत करते हैं और हर मंगल को हम सिंधी ज़ुबान में खुदा की इबादत करते हैं। हम सारा जलाल खुदा बाप बेटे रूहुल कुद्स को देते हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा खुदा के खादम भाई सैमुअल पॉल से कि पहले वो अपनी थोड़ी सी टेस्टमनी शेयर करें, अपनी खिदमत के बारे में थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। गो वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, वेल नोन खादम है खुदा के कलीसिया में। तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो हमारे साथ अपनी गवाही शेयर करें और फिर हम दो सलाम लें। में खुदावंद ने 17 साल की उम्र में मुझे आवाज़ दी और कहा कि या मैं अपनी ज़िंदगी उसको दे दूँ या हमेशा के लिए उठ के चला जाऊँ। मैं इबादत में बैठा हूँ। मैंने आंसुओं के साथ अपने गुनाहों का इकरार किया और अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दे दी। 1980 में यानी 1 साल बाद दुआ में बैठे हुए घर के अंदर जब मैं दुआ कर रहा था तो खुदावंद ने बड़े वाज़े तौर पर मुझे आवाज़ दी। एक दफ़ा फिर आवाज़ दी। अब आवाज़ ये थी कि मैंने तुझे कलाम की मुनादी के लिए चुना है, मेरा कलाम पढ़ा कर और मेरे हुजूर में बैठा कर। तेरे जैसे और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी वापस आना है और तू उनको मेरे पास लाएगा। मैंने अपने आप को खुदा के सामने पेश किया और खुदा ने ये वादा भी किया कि वो मुझे बहुत से गीत देगा अगर मैं ताबेदारी करूँगा। खुदा ने 70 से ज़्यादा गीत मुझे बख्शे। मैं इसके लिए खुदा का शुक्र करता हूँ। और फिर खुदा ने मुझे जैसे शुरू में संडे स्कूल में, फिर उसके बाद नौजवानों में, फिर कलीसियाई इबादत में कलाम के लिए इस्तेमाल किया। आज बहुत साल गुजर जाने के बाद यानी 1980 से अब 40 साल हो गए कलाम की मुनादी करते करते मैं अब कौमों में उसका कलाम सुना रहा हूँ मुख्तलिफ तरीक़ों से। लैंग्वेज रिकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट एक अदारा है जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ और खुदा का शुक्र है कि खुदा हमें 74 लैंग्वेज ग्रुप्स में इस्तेमाल करता है कि उनकी मादरी ज़ुबान में, माँ बोली में बशारती पैगाम को रिकॉर्ड किया जाए और उनकी माँ बोली में खुदा की मोहब्बत उन तक पहुँच जाए। एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट इन पाकिस्तान के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ और खुश हूँ कि जिस तरह हमारे भाई बेंजामिन लूक और उनकी टीम खुदा के जलाल के लिए मुल्क भर में काम कर रही है, तो उन्होंने मुझे भी इन्वाइट किया है ताकि मैं अपनी गवाही दूँ, कलाम सुनाऊँ और गीत पेश करूँ। तो आइए हम एक गीत सुनते हैं। नाम विचों वड्डा यीशु नाम वेखिया, नाम विचों वड्डा यीशु नाम वेखिया। पढ़ के मैं जदों सी कलाम वेखिया, पढ़ के मैं जदों सी कलाम वेखिया। नाम विचों वड्डा यीशु नाम वेखिया, नाम विचों वड्डा यीशु नाम वेखिया। बड़ियां नमाज़ां पढ़े रोज़े रख लइए, कटे सी वज़ीफ़े ते तवीत जग लए। यीशु ये ज़िंदगी दा जाम लेके आ, यीशु ये ज़िंदगी दा जाम लेके आ। नाम विचों वड्डा यीशु नाम वेखिया, नाम विचों वड्डा यीशु नाम वेखिया। क्यों न दसा यीशु दी कहानी दोस्तों, बदली जिस जिंदगानी दोस्तों। हाँ, बदली जिस जिंदगानी दोस्तों। यीशु नू मैं नाल सुबह शाम वेखिया, यीशु नू मैं नाल सुबह शाम वेखिया। नाम विचों वड्डा
शुक्रिया भाई सैमुअल, बहुत खूबसूरत गीत। मैं उन सब के लिए जो इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, हम खुदा उनके शुक्रगुजार हैं। खुदा के खादम पास्टर मुनीर बशीर हमारे साथ हैं, भाई कलीम मुगल और उनकी फैमिली हमारे साथ हैं, और दूसरे लोग जो हमारे साथ शरीक हैं। सब हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हमारा ईमान है कि आज की इबादत और प्रस्तिश आप सब के लिए, हम सब के लिए बायस बरकत होगी। और इस खूबसूरत गीत के साथ कि नावा विचो नाम यीशु नाम लिखिया, और हम खुदावन के बेहद मशकूर हैं अपने हम खिदमत भाई सैमुअल पॉल के लिए, जिनको खुदावन ने ना सिर्फ कलाम की खिदमत का तोड़ा दिया, इसके साथ साथ खूबसूरत गीत, शायरी, कंपोजिंग खुदा ने उनको दी है, और उनकी पूरी फैमिली इसमें शरीक है। इसके लिए मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं दरख्वास्त करूँगा भाई आसिफ से, वो आएंगे भाई सैमुअल पॉल की सारी खिदमत के लिए, LRI यानी कि लैंग्वेज रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्री के लिए, भाई सैमुअल पॉल के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए बरकत चाहेंगे, जब वो थ्रू आउट पाकिस्तान और मुल्क से बाहर भी खिदमत के लिए आते जाते रहते हैं, स्पेशली जब वो पाकिस्तान दूर दराज इलाकों में जाकर खुदा उनकी खिदमत करते हैं। मुख्तलिफ ज़ुबानों में, तकरीबन 74 ज़ुबानों में वो मुख्तलिफ कलाम के हिस्सों का, बाइबल स्टोरीज़ का तर्जमा करते हैं। तो हम इस सारी खिदमत गुजारी के लिए खुदा की शुक्रगुजारी पेश करेंगे, ताकि खुदा उनका जलाल हो सके और खुदा और कसरत से अपने बंदा को इस्तेमाल कर सके। मैं दरख्वास्त करूँगा भाई आसिफ से, वो आएंगे और दुआ में रहमत करेंगे। यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदा सलूस यहोवा पाक खुदा, तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से हम तेरे कदमों पर झुकते हैं, तुझे सिजदा करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, तेरी हमदो सना और सताइश करते हुए तेरे तख्त के सामने झुकते हैं। खुदा शुक्रगुजार है खुदा, तू हमें बार बार मौके फराहम करता है कि हम तेरे हुज़ूर झुक सकें, तुझे सिजदा कर सकें, तेरी हमदोसना तेरी सताइश कर सके, तेरी आवाज़ को सुन सकें, अपनी शुक्रगुजारियाँ, अपनी मिन्नतें मुनाजातें तेरे हुज़ूर रख सकें। इस वक्त खास तौर पर मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा तेरे खादिम भाई सैमुअल पॉल के लिए, खुदा उनकी सारी खिदमत के लिए, उनकी मिसेस के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, खुदा लैंग्वेज रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्री के लिए, खुदा उनकी सारी खिदमत के लिए हम तेरे हुज़ूर शुक्रगुजारी पेश करते हैं। और यीशु मसीह के नाम से तेरे हुज़ूर मिन्नत करते हैं कि खुदा तो अपने बंदा को और ज़्यादा कसरत के साथ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, ताकि बहुत सौ की बरकत का बायस हो सके, बहुत सी रूहों को तेरे लिए जीतने वाला हो और बहुत से लोगों को तैयार करने वाला हो तेरी आमद के लिए खुदा, और बहुत से लोग उनके वसीला से, उनकी खिदमत के वसीला से अपनी ज़िंदगियाँ तुझे देने वाले हों, तेरे पास आने वाले हों। खुदा तेरा शुक्र करते हैं तेरे बंदा की सारी खिदमत के लिए, उनके सारे वसाइल के लिए खुद पर खुद हम तेरी बरकत चाहते हैं। तो अपने इलाही खजानों से उनके लिए वसाइल मुहैया कर, ताकि वो बहुत और ज़्यादा लोगों तक वो पहुँच सके, रसाई कर सके, खुद हम और ज़्यादा ज़ुबानों में तेरा कलाम लोगों तक पहुँचा सके। प्रस्तुश के वसीला से, कलाम के वसीला से वो खिदमत में बढ़े, तरक्की करें। खुद हम अपने जलाल के लिए अपने लोगों को और ज़्यादा इस्तेमाल कर, और खुद हम उनकी सेहत, सलामती, उम्र की दराजी के लिए दुआ करते हैं। रूहानी जिस्मानी नेमतों बरकतों के लिए खुद हम तेरे ज़रूर दुआ करते हैं। उनकी ख़ानदानी कलीसियाई तरक्की के लिए, बरकत के लिए तेरे ज़रूर मिन्नत करते हैं। रहम कर, अपने बंदा को बड़ी कसरत के साथ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, और खुद हम तेरा बंदा खुद हम बहुत से के लिए बरकत का बायस हो, अच्छा नमूना पेश कर सके, बहुत सौ के लिए मशले राह साबित हो सके। खुद हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। पास्टर बेंजामिन साहब के लिए खुद हम एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट इन पाकिस्तान की सारी टीम के लिए, उनके घरानों के लिए खुद हम तेरी शुक्रगुजारी पेश करते हैं। तमाम खादमीन को खुद हम जो दुनिया के कोने कोने में तेरी खिदमत करते हैं, उन सबको, उनके घरानों को तेरी शोलज़न तलवार के पैरा में देते हैं। यीशु मसीह के नाम से तेरे खादमीन जो खुद हम तेरे कलाम की खिदमत करते हैं, तो उनको, उनके घरानों को महफूज रख। शरीर इब्लीस की सारी चलाकी, बदी की तमाम देखी अनदेखी ताकतें जो किसी भी तौर से उनकी खिदमत के खिलाफ हैं, उनकी रूहानी जिस्मानी तरक्की के खिलाफ हैं, यीशु के नाम से उन तमाम बदी की नापाक कुव्वतों को बांधते हैं। उस इब्लीस के तमाम नापाक मंसूबे जो तेरे लोगों के खिलाफ वो बनाए हुए हैं, लोगों की बरकत को रोकने के लिए, लोगों की खिदमत को रोकने के लिए, यीशु के नाम से उन तमाम नापाक मंसूबों को फेल करते हैं।
और तेरे पाक खून में छुपाते हैं, तेरी शलद तलवार के पैरा में खुदा देते हैं, तेरे फरिश्ते हिफाजत किए रखे, तेरा रूह कुदस रहनुमाई करता रहे, मददगार रहे, तेरा फजल, तेरा करम, तेरा रहम तेरे तमाम कदसीन खादमीन के साथ रहे, उनके घरानों पर तेरा आसमान खुला रहे। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। शुक्रिया भाई आसिफ, हम खुदावंद के मशकूर हैं कि खुदावंद अपने जलाल और अपनी खिदमत के लिए हमें इस्तेमाल करता है। हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं। अभी मैं दावत दूंगा अपने नौजवान साथी सोलेमन आसिफ को कि वो प्रस्तिश में हमारी रहनुमाई करेंगे और नहायत ही मोस्ट फेवरेट गीत ऑफ ऑल द टाइम, कलीसिया का पसंदीदा गीत, रूह की खुशी और रूह का मसा यस्सु के लहू से मुझको मिला, यही है खजाना मेरा मालूम था। तो मैं दरख्वास्त करूंगा सोलेमन से कि वो खूबसूरत आवाज़ में खुदावंद की प्रस्तिश में रहनुमाई करेंगे।
शुक्रिया सोलेमन खूबसूरत गीत के लिए। यूं तो सारे गीत जो भी खुदा की प्रस्तिश के लिए खुदा के लोग लिखते हैं बहुत प्यारी प्यारी धुनें बनाते हैं, हमारे फेवरेट होते हैं, लेकिन कुछ गीत ऐसे होते हैं जो दिलों को छू जाते हैं। और जब रूह के मसा के जिक्र होता है जिस गीत में भी, उसमें एक स्पेशल बरकत हम पाते हैं। तो शुक्रिया सोलेमन, हम खुदा उनके बेहद मशकूर हैं सोलेमन के लिए। आए अभी वक्त है कि हम अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करेंगे। मैं दरख्वास्त करूँगा हमारी बहन मिसेस कमर आसफ वो आएंगी और आज के कलाम के लिए खुदा के खादम के लिए दुआ में रहनुमाई करेंगी। मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ भाई सैमुअल पॉल का। जब हमारी पहली मुलाकात मेरे ख्याल से 88 में हुई थी, जब हम लाहौर में शेखुपुरा में थे, वहाँ ग्लोरिया कॉलोनी में एक कन्वेंशन थी, आई थिंक बैथनी चर्च की तरफ से मास्टर मुश्ताक साहब और कुछ और कलीसिया के बुजुर्गों ने मिलकर कराते थे। मैं उस वक्त सारपत बाइबल इंस्टीट्यूट में था और हम वहाँ खुदा की खिदमत के लिए पूरी टीम आए हुए थे। और उन्हीं दिनों में फिर भाई सैमुअल से भी हमारी मुलाकात हुई और उस वक्त से लेकर आज तक उस खुदा की मोहब्बत में हम कायम हैं। ये खुदा का फजल है और खुदा के खादम की, इतने बड़े खादम हैं लेकिन मुझ जैसे छोटे से खादम से प्यार करते हैं। उनके लिए, उनकी मिसेस के लिए, उनकी पूरी फैमिली और टीम के लिए मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहता है। मैं दावत दूंगा अपनी बहन से कि वो सामने आएंगी और खुदा के खादम पास्टर सैमुअल साहब के लिए, सैमुअल पॉल के लिए दुआ में रहनुमाई करेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करें और खुदा के कलाम के लिए दुआ करें जो आज खुदा के बंदा के वसीला से हम सुनने को हैं। खुदा अपने खादिम को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और हम सब की ज़रूरत के मुताबिक खुदा आज हम सब से मुलाकात करे, हमसे कलाम हो। ऐ आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं, तू भला और तेरी शफ़क़त अबदी है। तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं क्योंकि तू कदूस 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 रब्बुल फ़ाज है। तू जो कल और आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। खुदावन, हम तेरे वादों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तूने हमसे वादा किया कि देख मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे खादिम के लिए जिसके वसीला से आज हम तेरा जिंदा कलाम सुने। खुदावन, तेरे खादिम को तेरे खून में छुपा देते हैं और दुआ करते हैं पाकरूल तू उनकी रहनुमाई कर। वह जो कुछ बोले वो तेरे कलाम के वसीला से तेरी आवाज़ हम तक पहुँचाएं, वो हम सब की ज़रूरत के मुताबिक हो। यीशु नाम से आज अपना कलाम नाजिल करके हम सब की ज़रूरियात को तू पूरा करना, अपने खादिम को इस्तेमाल करना और उनकी मिनिस्ट्री को और ज़्यादा वसी करना ताकि तेरा कलाम और पूरी दुनिया में, सारी दुनिया में सुना सके। यीशु नाम से आज के कलाम के लिए तेरी बरकत को मांग लेते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, अपने आप को खाली कर लेते हैं, क्योंकि जब तेरा कलाम नाज़िल होता है तो बंधन टूटते हैं। यीशु नाम से अपने आप को बरे के लहू में छुपा देते हैं। जितने लोग आज इस मीटिंग में शामिल हैं उन सब के लिए तेरी बरकत को मांग लेते हैं। और यीशु नाम से आज का कलाम हम सब की जिंदगियों को बदल देने वाला कलाम हो ताकि हम तुझ में और ज्यादा कायम होते जाएं और हम सब की जिंदगियों से तेरा नाम इज्जत और जलाल पाता रहे। मसीहा के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। शुक्रिया बहन, खुदा आपको बरकत दे। हम खुदा को मशकूर हैं अपनी बहन के लिए जो हमेशा खुदा की खिदमत के लिए और खुदा के लोगों की खिदमत के लिए तैयार रहती हैं।
हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं। अब हम उस वक्त में शामिल हो चुके हैं कि हम खुदावंद की आवाज़ खुदा के खादम भाई सैमुअल पॉल से सुनेंगे। मैं बेहद खुदा का मशकूर हूँ कि मेरी दरख्वास्त उन्होंने कबूल की और वक्त निकाला, चूँकि वो काफ़ी मसरूफ़ रहते हैं। इतनी बड़ी खिदमत है जो वो पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी करते हैं, और उन्होंने वक्त निकाला। मैं खुदा उनका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं दरख्वास्त करूँगा खुदा के खादम भाई सैमुअल पॉल। तो हम खुदा के कलाम में सुनेंगे इस बात के अंदर में बयान किया गया है इसके लिए खुदा कैसे वैसे देखना चाहता है। बहुत दिलचस्प बात है कि बचपन से अपने संडे में और फिर बड़े कलाम सदस्य 38 वर्ष के निवास के शिफा के बारे में सुना है। लेकिन आज मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि खुदा ने इसके बाद जो कुछ हुआ मुझे दिखाना शुरू किया। और इस वाक़े में जो गौर करने वाली बात है वो ये है, इसके बाद मैं एडिट करूंगा। इस वाक़े में जो मौज़ा है, जो गौर करने वाली बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह किस तौर से इस शख्स के पास बढ़ गए जबकि इतने बीमार उनके चारों तरफ थे जब वो वहां पहुंचे। आइए जरा 5वां बाब पहली याद से देखते हैं, यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब है, उसकी पहली याद से। यह लिखा है कि इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। फिर आगे जरा देखें, लिखा है यरूशलेम में भेड़ दरवाजे के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैत हस्ता कहलाता है और उसके 5 बरामदे हैं। तीसरी आयत, इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पशमुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतज़िर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदा का फरिश्ता हौज पर उतर कर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। अब देखें ये गौरतलब कि इतने सारे बीमारों के दरमियान एक शख्स है जो 38 बरस से बीमार है और उसको यीशु ने पढ़ा देखा। क्या बाकियों को नहीं देखा? एक ही को पढ़ा देखा। खुदावंद यीशु तो कादिर थे। खुदावंद यीशु खुदा का बेटा कुदरत रखता था, वो सबको शिफा दे सकता था। अब फरिश्ता जब आता था और हौज के पानी को हिलाता था तो पहला शख्स जो उतर जाता वही शिफा पाता। और इस माहौल के अंदर भी एक ही शख्स नजर आ रहा है। इसका मतलब है खुदा इंसान से कुछ कह रहा था। खुदा तो शाफी है, लेकिन हम इंसान कैसे रिस्पॉन्स देते हैं। अब हम गौर करेंगे कि खुदावंद यीशु का इस एक शख्स के पास आना क्या अचानक से है या कि वो खास मकसद के तहत उसके पास आए। आइए जरा देखते हैं। जब हम इससे आगे देखते हैं तो खुदावंद यीशु ने जब ये देखा कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है तो फिर उससे एक सवाल पूछा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? तो इससे आगे जो गुफ्तगू हुई आप जरूर जानते हैं कि उसने बताया कि मेरे बस में नहीं कि मैं जल्दी पानी में उतर जाऊं, जिसका मतलब है मेरी ख्वाहिश है कि मैं शिफा पाऊं, लेकिन कोई मेरा मददगार नहीं है। और खुदावंद यीशु ने उससे कहा 8वीं आयत में कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल। फिर लिखा है कि उसके बाद वो ठीक हो गया, चारपाई उठाई और चल दिया। अब ये थोड़ा खतरनाक सा माहौल है। क्यों? इसलिए कि ये सब्बत का दिन था। अब गौरतलब बात यह है कि एक बंदे को तो खुदा यीशु ने ठीक कर दिया, लेकिन फिर ऐसी बात क्यों कह दी जो सब्बत के दिन लोग कबूल नहीं करेंगे, खासतौर पे मजहबी रहनुमा। तो क्यों उन्होंने कह दिया कि चारपाई उठा? बज़ाहिर ये लगता है ये तो लड़ाई शुरू करने वाली बात है, और ऐसा हो गया। जब हम आगे बढ़ते हैं 10वीं आयत से तो लिखा है कि ये सब्बत का दिन था, और जब यहूदियों ने देखा कि इस बंदे ने शिफा पाई और फिर सब्बत के दिन चारपाई उठाकर चल रहा है, तो उन्होंने एतराज किया। उसका जवाब यह था कि जिसने मुझे अच्छा किया है उसने मुझे कहा। अच्छा, बाद में खुदावंद यीशु को जब उसने देखा, उस वक्त नहीं, लेकिन बाद में जब खुदावंद यीशु को उसने देखा
तो हैकल में उसकी मुलाकात इससे होती है। तो लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसको एक और बात कही। ये भी बड़ा दिलचस्प है कि उस दिन ये नहीं कही, लेकिन अब कही जब दोबारा से मुलाकात हुई। और क्या कहा कि देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए। तो इससे हम सीखते हैं कि खुदा हमें आगाह कर रहा है कि हमें तारीकी और गुनाह से बचना है, खुदा से फजल मांग कर, ताकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम फिर उस गुनाह में गिर जाएं और उससे बड़ी आफत का शिकार। अब उसको पता चल गया था कि ये यीशु है। तो उसने यहूदियों को बताया कि अरे ये यीशु था। उन्होंने कहा अच्छा यीशु है। सो अब वो यीशु को तंग करने लगे, कलाम में लिखा है सिताने लगे। तो खुदावंद यीशु ने उनको एक खास जवाब दिया। अब जरा सुनिए का जवाब क्या था। मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। अब एतराज ये था कि सबक के दिन क्यों काम करने के लिए कहा। तो यीशु ने कहा मेरा बाप काम करता है, मैं भी काम करता हूँ, वो अब तक काम करता है। तो अब यहाँ पर ये समझना है कि खुदावंद यीशु अब सबक से नजरें हटाकर बाप की तरफ उनकी नजर लगा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मेरी नजरें बाप की तरफ लगी हैं, तुम भी बाप की तरफ नजरें लगाओ। अब ये इस वक्त का प्रॉब्लम था कि वो शरीयत पर इतना ज्यादा फोकस हो गए थे कि जहां ताजा रहनुमाई बाप से लेनी थी, खुदा बाप से रहनुमाई लेने की बजाय वो सिर्फ कलाम के साथ जुड़ गए थे जो मूसा की तरफ से उन्हें मिल गया था। और ये बहुत खतरनाक हो गया था उनके लिए। सिर्फ खुदा के मुंह की बातों को जो लिखी गई हैं वो होल्ड कर रहे थे, लेकिन खुदा बाप से लिपट नहीं रहे, क्योंकि खुदा जिंदा खुदा है और वो बोलता है। आज भी बहुत से ईमानदार ऐसी ही हालत में हैं। वो मौजों और तजुर्बों में तो हैं और खुदा के कलाम से भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन हालात और वाकयात के अंदर खुदा क्या कर रहा है वो उससे वाकिफ ही नहीं होना चाहते। अभी हमें थोड़ा सा आगे बढ़ने पे ये मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद यीशु ने जब उन्हें कहा कि बाप, तो बहुत ज्यादा नाराज हुए कि ये अपने आप को उसका बेटा बना रहा है और खुदा को बाप कह रहा है। और लिखा है कि वो उसको कत्ल करने की कोशिश करने लगे। पहले वो सताने की कोशिश कर रहे थे, अब वो कत्ल करने की कोशिश करने लगे। हालांकि ये सब कुछ हो रहा था और ऐसा लगता है कि हम इंसानी तौर पे हम कहेंगे कि उसको यहाँ से निकल जाना चाहिए था, यीशु को जगह छोड़ देनी चाहिए, लेकिन खुदावंद यीशु ने एक अगली बात कर दी। खुदावंद यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता। अब जो बीच की बात है, चाहे वो नहीं समझ रहे, खुदावंद यीशु उनको बताना चाहते हैं। और ये इसलिए हुआ ताकि आज हमारे लिए कलाम लिखा जाए, क्योंकि हम भी उसी हालत का शिकार हो जाते हैं। क्या हम मौजज़ा और कलाम पर इतना फोकस करने लगते हैं कि खुदावंद जो आज कर रहा है उसको समझ नहीं पाते। बिल्कुल ऐसे ही जैसे शागिर्दों के लिए बड़ी हैरानी थी कि खुदावंद यीशु एक सामरी औरत के साथ क्यों बातें कर रहा है, और फिर यहूद के लोगों के लिए बड़ी हैरानी थी कि वो ज़कई के यहाँ क्यों जा उतरा, वो तो गुनहगार आदमी है। तो ये लोगों को हैरान होने का मौका क्यों दिया जा रहा है? खुदा हैरान होने का मौका नहीं दे रहा, लोग सेंसिटिव नहीं है बात की आवाज सुनने के लिए। अब जरा सुनिए, खुदावंद यीशु ने कहा सिवा उसके जो बाप को करते देखता है। बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवा उसके जो बाप को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। जिन कामों को बाप करता है बेटा उसी तरह करता है। इसका मतलब ये हुआ कि खुदावंद यीशु को आसमानी बाप ये पूरा सीन दिखा रहा होगा कि भाई जब तू जाएगा यरूशलेम में, हौज के पास जाना, वहां पर एक शख्स होगा, उसको ठीक करना। हो सकता है ये वीडियो सारी चल रही हो कि बाप उस शख्स को शिफा दे रहा है और खुदावंद यीशु के लिए रहनुमाई हो गई, और खुदावंद यीशु ने कहा मैं जो बाप को करते देखता हूँ वही करता हूँ। अब यहूदी कलाम को होल्ड कर रहे हैं, लेकिन बाप की ताजा रहनुमाई में चल नहीं रहे। और हमें ये समझना है कि खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के तीन पहलू साथ साथ चलते रहे। खुदावंद यीशु तालीम देता रहा, खुदावंद यीशु शिफा देता रहा, खुदावंद यीशु बाप की मर्जी के मुताबिक काम करता है। आज हम इस कदरे में हैं कि दो चीजों को होल्ड करें। हम तालीम को होल्ड कर रहे हैं, हम शिफा को होल्ड कर रहे हैं, लेकिन खुदा बाप क्या रहा है हम ताजा सुनने के लिए तैयार ही नहीं। अरे यरूशलेम शहर में आज एक शख्स शिफा पाने को है, जैसे कि जी जाने क्यों
जैसे कि यरबू के लोग तैयार नहीं हैं। अब जब यरबू के लोग तैयार नहीं हैं तो वो लिखा है बुड़बुड़ाने लगे कि वो एक गुनहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। इसी तरह यहूदी बुड़बुड़ाने लगे कि इसने चारपाई उठाने के लिए क्यों कहा, जबकि यीशु कह रहे थे कि मुझे ऐसा कहीं जल्द उतरा, मुझे तेरे घर जाना जरूर है, आज मुझे तेरे घर जाना जरूर है। और यहाँ खुदा यीशु मसीह कह रहे थे कि जो बाप करेगा मैं वही करूंगा, जो बाप करता है मैं वही करता हूं। तो अजीजों, क्या आप जानते हैं कि बाप आपको कुछ दिखाना चाहता है? बहुत से लोग खुदा बाप के हुजूर में खामोश बैठते ही नहीं। हमारी दुआ और तर्ज जिंदगी ऐसी ही है जैसे हम खुदा को बता रहे हैं और रिटन वर्ड को तो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि बहुत दफा ये सोचते हैं कि इसको पढ़ने से बरकत मिलेगी, जैसे और कौमें भी सोचती हैं कि ये करने से सवाब मिलेगा। लेकिन खुदा बाप जो जिंदा है, कैसे हो सकता है कि आपको बोलने का मौका दे रहा है और खुद बोलता नहीं है? आज के माहौल के अंदर खुदा क्या कहना चाह रहा है, इसको समझिए। खुदा यीशु ने कहा मैं वही करता हूँ जो बाप को करके देखता हूँ। बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता, बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम कितने काम हैं जो खुद करते हैं। हम शक्ति जिंदगी में कितने फैसले खुद ही करते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ कलाम को पकड़े हुए हैं। लेकिन कलाम के साथ कलाम देने वाला मौजूद है। हर किताब जो दुनिया में छापी जाती है, राइटर साथ नहीं होता, लेकिन ये एक किताब है जिसके साथ इसका राइटर मौजूद है, क्योंकि वो जिंदा है। तो खुदावंद यीशु मसीह के सिर्फ दो एस्पेक्ट्स को नहीं पकड़ेंगे हम, बल्कि बाप की ताजा रहनुमाई को भी लेंगे, और जब लेंगे तो बाप हमें लेकर चलेगा। अब देखिए कि आजकल लॉकडाउन का टाइम है। हमारी जिंदगी का फैसला कौन करेगा? मैं करूंगा कि हुकूमत करेगी? ठीक है, आला हुकूमतों के ताबे तो रहना है, लेकिन हो सकता है कि एक शख्स खुदकुशी करने वाला है और खुदा आपको कहता है कि कल शाम को कलमा चौक पर चले जाना, लाहौर के कलमा चौक पर, और 11 बजे बुरे एक शख्स वहां से छलांग लगाएगा और तू वहां पर जाकर रुक जाना। जब वो पुल के पास ऊपर आए तो जाकर उसको पकड़ लेना और कहना, ए जैद बकर, जो भी उसका नाम है, उसको कहना कि खुदा तुझे प्यार करता है। ये गवाहियां मौजूद है। लेकिन अगर हम सिर्फ फितरी अकल के साथ चलेंगे तो ऐसा नहीं होगा। सो आज का पैगाम ये हुआ कि खुदा के कलाम की तालीम को लेना है, जहां से हमें रूहानी असूल मिलते हैं, और खुदा से मौजूद को लेना है, और खुदा से रहनुमाइयां लेनी है कि रोजमर्रा जिंदगी में हम क्या करें। शायद यही वजह है कि खुदा यीशु ने कहा कि एक दिन जब हम बाप के सामने हाजिर होंगे तो हमें से बहुत है जो कहेंगे कि हमने क्या तेरे नाम से मौजे नहीं दिखाए। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत से लोग जो यीशु मसीह को शख्सी नजात देकर कबूल कर चुके हैं, वो भी बच जाएंगे मगर जलते जलते। क्यों? इसलिए कि कलाम की तालीम को होल्ड किया, मौजात को लिया, लेकिन पूछ कर नहीं चले। और हमारे पास जो जीसस फिल्म है, मैं अकेले सोचता हूँ कि पाकिस्तानी मसीहों को अब जीसस फिल्म नए अंदाज से बनानी चाहिए, जिसमें तालीमात, मौजात और यीशु कैसे बाप को पूछ के चलता था, इसको भी हाईलाइट किया जाए। खुदा हमें तौफीक दे कि हम एक नए अंदाज से खुदा के सामने झुकना शुरू करें, और जब तक खुदा की आवाज ना सुन लें हम खुदा के तालिब रहें। आज का तो मौका है, बहुत सा टाइम मिला हुआ है। खुदा यीशु मसीह सुबह सवेरे बाप के हुजूर में जाते, शाम को जाते, खुदा यीशु मसीह सारी रात दुआ में रहते। और जब उन्होंने शागिर्दों को चुना था तो उस टाइम वो गुजरी रात बाप के हुजूर में थे। क्या कर रहे थे? आज की आयत के मुताबिक तो वो यही कर रहे थे कि बाप उन्हें गाइड कर रहा था कि कौन कौन से लोग होंगे। हालांकि वो नाफरमान लोग भी थे, लेकिन बाप का एक चुनाव था कि 12 कौन से लोग होने चाहिए। लेकिन जब आकुल आया तो ताबेदारी का नया फजल उनको मिल गया। सो इसका मतलब है कि हमें खुदा यीशु मसीह की मानद बनना है। हमें अपनी अपनी बादशाहियां नहीं बनानी, ना घर में, ना ऑफिस में, ना मसीहदारों में, ना कलीसियाओं में। बादशाही खुदा की है। खुदा आपको बरकत दे, तौफीक दे। इस नए काम को शुरू कीजिए अगर आपकी जिंदगी में नहीं है। खुदा की हज़ूरी में खामोश वक्त गुजारिए, अकेले में, खानदान के साथ, मसीही रहनुमाओं के साथ, कलीसिया के लोगों के साथ तालिब होना शुरू हों। खुदा इन कौमों के पास हमें ले जाना चाहता है, हमारे रिश्तेदारों, मोहल्लेदारों के पास ले जाना चाहता है,
जो इस मुल्क में मौजूद हैं, और हम एक सिस्टम बना के बैठे हुए हैं एक खास अंदाज से। इतवार को हम गीत गाते रहे, आजकल तो इतवार को जाने का मौका भी जाता रहा, हम गीत गाते रहे, सारी कौमें आपस अंदर खुशी मनाते रहे। ठीक है, सारी कौमें तुझे जाने, तेरी खुशी मनाए। लेकिन जब सोमवार आया तो हमने ऐसे बिहेव किया जैसे कौमें सीधी जहन्नुम में जा रही है, और हम जो मसीह के पास आ गए हैं पाकिस्तानी, सिर्फ हम खुदा के पास जाएंगे। मेरे अजीजों, खुदा ने बाप अब्राहम से कहा था कि सब कौमें, सब कबीले, सब घराने तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। तो कैसे? खुदा यीशु मसीह के जरिए से, और आप मेरे और आपके जरिए से, क्योंकि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। आओ खुदा से दरियाफ्त करें और उन लोगों तक पहुंच जाएं जिनका खुदा अपनी मोहब्बत पहुंचाना चाहता है, ताकि जब उसके सामने हाजिर हो हमें शर्मिंदगी ना हो। खुदा आपको बरकत दे। ऐ बाप, हम मिन्नत करते हैं यीशु मसीह के नाम में, हमारी मदद करके जिस तरह तूने अपने बेटे को भेजा, अगर वो सिर्फ सलीब पर अपनी जान देकर चला जाता तो ये भी काफी होता। तो भी वो इसराइल की गलियों बाजारों में फिरा ताकि हमें दिखाए और नमूना दे कि हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए। आज के कलाम के लिए तेरा शुक्र हो जिसमें तूने हमें याद दिलाया कि ना सिर्फ तेरे कलाम की तालीम और न सिर्फ मौज़ात बल्कि तेरी रहनुमाई को भी लेकर चलना है, ताकि हमारी शख्सी जिंदगी में, हमारे घर में, हमारी कलीसिया में, हमारे मोहल्ले में, हमारे इदारों में तेरी मर्जी पूरी हो। हमें अपने बादशाही सिस्टम्स बनाने से बचा। ऐ बाप, इस आसमान पर तेरी मर्जी पूरी होती है, जमीन पर भी हो, और तेरी बादशाही हमारी जिंदगियों में काम करे। खुदा यीशु के नाम में आमीन। खुदा आपको बरकत दे। शुक्रिया भाई, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आज के फलदार मौसर कलाम के लिए मैं उन सब का भी मशकूर हूँ जो हमारे साथ इस इबादत में शरीक रहे, और मेरा ईमान है कि आपने ज़रूर बरकत पाई होगी। खुदा के खादम पास्टर मुनीर बशीर साहब थे हमारे साथ, जैकोबाद से हमारी बहन मिसेस एस्टर एरिक जावेद थी, और ज़करियुस थे जैकोबाद से, भट्टी फैमिली से, और फिर भाई अली लियाकत हमारे साथ थे, यासीन चौहान साहब थे, मियाँ चनो अमृत नगर 133 चक से खुदा के खादम भाई इमैनुअल खोखर हमारे साथ थे, और कश्मीर से भाई रफाकत गिल हमारे साथ थे। और उन सब के लिए जिनके नाम मैं नहीं पढ़ सका, हम आप सब के लिए और आपकी फैमिलीज़ के लिए खुदा की बरकत चाहते हैं। आज के कलाम की दो खूबसूरत बातें मैं उनको दोहराना चाहता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि आपने वो बातें मिस की हो। भाई ने बड़ी ज़बरदस्त दो बातें की हैं। कलाम मुकद्दस ऐसी किताब है, आप दुनिया की कोई भी किताब उठाएं और आपको पूछना पड़ेगा इसका मुसन्निफ कौन है। हो सकता है वो इस दुनिया में मौजूद है तो किसी और शहर में, किसी और मुल्क में, या हो सकता है दुनिया फानी से कूच करके। लेकिन किताब मुकद्दस एक ऐसी किताब है, आप जब भी इसको हाथ लगाएं उसका मुसन्निफ जिंदा और आपके साथ मौजूद होता है। हालेलुया। ये कलाम मुकद्दस की सबसे खूबसूरत बात है कि इस कलाम मुकद्दस का मुसन्निफ जो है हमेशा अपने पढ़ने वाले के साथ रहता है, और उसका दिल और उसका जहन खोलता है ताकि वो उसको पढ़ सके। यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में बहुत सारे नावल, बहुत सारी किताबें पढ़ाई जाती हैं और कहा जाता है कि मुसन्निफ था, लेकिन किताब मुकद्दस का मुसन्निफ था, है और अब तक रहेगा, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है। और ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि हमारा खुदा कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। और बड़ी दूसरी एक खूबसूरत बात आज उन्होंने मेरे साथ शेयर की, कलाम के दौरान भी की। यहूदी क्यों यीशु से तंग रहते थे, क्यों बार बार यीशु को टोकते थे कि सब्बत के दिन ये काम ना किया कर। और आज मैं सीखा यहूदी फकी फरीसी सदूकी समझते थे यीशु जो है वो अपना काम कर रहा है, सब्बत का दिन खुदा का काम करने का दिन है। ये उनकी तफसीर थी सब्बत के लिए, जो बिल्कुल सही थी, लेकिन वो इस बात को मानते नहीं थे कि यीशु जो काम कर रहा है वो किसका कर रहा है,
खुदा का कर रहा है, इसलिए वो यीशु के काम को हमेशा रद्द करते रहे। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, यीशु ने बार बार कहा, मैं वही करता हूँ जो कहना बाप मुझे करने को कहता है। मैंने ज़मीन पर रह के बाप की मर्जी को पूरा किया और आखिरी दम तक ये कहा, अय बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हम खुदा उनके शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया भाई सैमुअल पॉल आपकी आज के खूबसूरत कलाम के लिए। हम खुदा उनके बेहद मशकूर हैं कि आपने हमारे साथ शेयर किया। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि खुदा ने हमें ज़िंदगी दी तो फिर इसी तरह हफ्ते को हम दोबारा 9 बजे लाइव शरीक होंगे। आप इन मैसेजेस को हमारे YouTube के चैनल पे भी देख सकते हैं। द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट इन पाकिस्तान जब आप लिखेंगे तो मैं दरख्वास्त करूँगा भाई स्टीफन से कि अगर वो YouTube में दिखाएंगे, जब वो सर्च करते हैं तो कौन सी तस्वीर आएगी और फिर किस तरह से वो कर सकते हैं। आप ज़रूर YouTube पे लिख सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, मसीहियों के साथ, गैर मसीहियों के साथ, जैसा आज कलाम में कहा कि हमें सबके साथ खुदा का कलाम शेयर करना है। जैसे ही आप लिखेंगे YouTube पे द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट इन पाकिस्तान तो इस तरह से सामने आ जाएगा और आप उसको मेरी जो तस्वीर पे सर्च कर सकते हैं। तो खुदा आपको बरकत देगा। ज़रूर इसको शेयर करें, हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हम अनकरीब एक नया सिलसिला सिंधी ज़ुबान में शुरू करने वाले हैं। द बायोग्राफीज ऑफ द डिसाइपल्स, शागिर्दों की फ़ाने उमरी, उन्होंने क्या क्या कहाँ कहाँ काम किया। हमारे भाई, हमारी टीम इस तहकीक में लगे हुए हैं ताकि प्रॉपर नॉलेज आपके साथ शेयर की जाए और खुदावन का जलाल ज़ाहिर हो सके। सो इसी तरह फिर मंगल को हम सिंधी ज़ुबान में इबादत करते हैं। जब सिंधी ज़ुबान में हम इबादत करते हैं तो उसमें हम सीखते हैं मसीह ने क्या क्या दावे किए कि राह की ज़िंदगी मैं हूँ, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। जैसे पिछले मंगल को हमारे अजीज़ भाई नूर नबी ने शेयर किया कि खुदा यीशु मसीह ज़िंदगी की रोटी है, जो खाएगा वो कभी भूखा नहीं होगा। इन सब बातों के लिए हम खुदा के शुक्रगुज़ार हैं। मैं अपनी टीम के लिए, उनकी वफादारी के लिए, दयानतदारी के लिए खुदावंद का बेहद मशकूर हूँ कि हम मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। हम इन सारे वसाइल के लिए खुदावंद के बेहद मशकूर हैं कि खुदा हमें सिखाता है ताकि हम आगे सिखा सकें। ज़रूर मेरे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए दुआ करते रहें कि हम मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें और ज़रूर एक दूसरे के लिए भी दुआ करते रहें ताकि खुदावंद का जलाल ज़ाहिर हो सके। अगर आपकी कोई दुआया दरख्वास्त है तो आप ज़रूर इस पे लिख सकते हैं ताकि हम मिलकर आपके लिए दुआ कर सकें। अभी हम ख़ास दुआ करेंगे चंद बीमारों के लिए और उनके लिए जो इस कोरोना की वजह से, इस वबा की वजह से बीमार हैं, जो मुतासर हुए हैं, जिनके कारोबार मुतासर हुए हैं, जिनकी जिंदगियां मुतासर हुई हैं और मुख्तलिफ तरीकों से वो परेशान हैं। खुदा उन सब को बरकत दे, अपने जलाल में इस्तेमाल करें। मैं दरख्वास्त करूंगा भाई आसिफ से, वो आएंगे मेरे साथ, हम मिलकर रूम में एक होकर दुआ करेंगे इन लोगों के लिए, खा वो हिंदू है, खा वो मुस्लिम है, खा वो सिख है, खा वो किसी भी नस्ल से, किसी भी कौम से है, खा वो मसीह के चुनी हुई कलीसिया है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से प्यार किया। हाँ जी, मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ। खुदा ने मुझसे प्यार किया, मेरे भाई से प्यार किया, लेकिन खुदा ने दुनिया से और हर एक उससे जो इस दुनिया में है, जिसको खुदा ने अपने हाथों से बनाया, खुदा उससे प्यार करता है। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। आए हम उनके लिए दुआ करें ताकि वो इस दुख की घड़ी में, इस परेशानी में, मायूसी में, तारीकी में खुदावंद के जलाल को देख सकें। जी भाई ज़रूर दिखाएं। ये YouTube आप जब सर्च करते हैं
द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट इन पाकिस्तान लिखेंगे तो इस तरह से सामने आएगा। मेरी तस्वीर है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो हमारी सारी वीडियोस वगैरह आ जाएंगी। जो सिंधी इबादत है, उर्दू इबादत है, ये भी इसमें शरीक हो जाएगी और आज का कलाम और हमदो सना भी इसमें शरीक हो सकेंगे। हम खुदावन के बहुत शुक्रगुजार हैं। आए हम दुआ करेंगे, मिलकर दुआ करेंगे। खुदा सलूस यहोवा पाक खुदा, हम तेरे हुजूर झुकते हैं, तुझे सिजदा करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। खुदा तू हमारा खुदा है, तू हमारा बाप है, तुम्हारी फिक्र करता है। हम शुक्रगुजार हैं खुदा कि तुम्हें हमारी दुआओं को सुनता है, उसका जवाब देता है। इस वक्त खास तौर पर खुदा इन तमाम दरखास्तों पर खुदा तेरे हुजूर में वो तेरे हुजूर पेश करते हैं, तेरे तख्त के सामने रखते हैं। खुदा तू इन पर अपने करम की निगाह कर, रहम कर खुदा, अपने नाम के जलाल के लिए इनको छू और बड़ी बरकत दे खुदा, शिफा अता कर खुदा, गवाही को कायम कर खुदा। तेरे नाम से मौजज़े होते हैं, आज भी खुदा तेरा खून हमारे पापों को धोता है खुदा, हमारे तमाम बीमारियों से रहाई देता है, शिफा देता है। हम तेरा शुक्र करते हैं बाप, तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो कोरोना की वजह से खुदम बीमार हुए, जो खुदम परेशान है, जो दुख में है, जो खुदम डिप्रेशन का शिकार है, खुदम वसाइल की कमी का शिकार है, खुदम जिनके कारोबार मुतासर हुए, खुदम जिनकी जिंदगियां मुतासर हुई, जिनके अजीज बीमार हैं खुदम, इन सारे मामलात को हम तेरे सामने रखते हैं, तेरे तख्त के सामने रखते हैं खुदम, तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदम। हम अपनी अकल से, अपनी समझ से, अपनी कोशिश से कुछ नहीं कर सकते जब तक तू हमारी मदद ना करे। खुदा पाक रूह हमारी जिंदगियों में इंटरवीन कर, मुदाखलत कर खुदा, हमारी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले। तू हमें बचाएगा तो हम बचेंगे खुदा। मुल्क पाकिस्तान पर है खुदम तेरा खास हाथ बड़ा हुआ चाहते हैं खुदम, पूरी दुनिया के तमाम ममालिक पर है खुदम, तमाम बरेज़मों पर है खुदम तेरी बरकत चाहते हैं, तेरा हाथ बड़ा हुआ चाहते हैं। तरस खा ले, रहम कर दे खुदम, मुआफ कर दे खुदम, यीशु के नाम से खुदम, यीशु के नाम से खुदम। हमारे मुल्क में जो है खुदम ये टिड्डी दल की खुदम जो वबा आई हुई है, जो फसलों को तबाह कर रही है खुदम, तू रहम कर, तरस खा, हमारे खताओं को मुआफ कर, हमारे गुनाहों को मुआफ कर खुदम। तूने हमारी खातिर अपना बेशकीमत खून बहाया है, तूने हर एक रंग, नस्ल, कौम, कबीले के लिए खुदम अपनी जान दी है। तू दुनिया में आया था ताकि खुदम तेरे मार खाने से हम बच जाएं, शिफा पाएं खुदम। हम तेरे जुर्म मिन्नत करते हैं, रहम कर दे, तरस खा ले खुदम, अपने नाम के जलाल के लिए इस दुनिया पर रहम कर, और ज्यादा फजल बख्श, मौका दे के खुदम लोग तेरे पास आ सके, अपने गुनाहों से तौबा कर सके और खुदम तुझे अपनी जिंदगी में अपना शख्सी निजात देंदा कबूल कर सके। ओ खुदम तू रहम कर, लोगों को मौके दे खुदम, यीशु के नाम से खादमीन को फजल बख्श के खुदम अनरीच्ड एरियाज तक पहुंच सके, तेरे कलाम को पहुंचा सके, तेरे खुशखबरी के पैगाम को पहुंचा सके खुदम, रहम कर। खुदम एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट इन पाकिस्तान की सारी टीम के तमाम मेंबर्स को, उनके घरानों को तेरे खून में छुपाते हैं खुदम, तू रहम कर, तरस खा खुदम, तेरा नाम सबकी जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाए। खुदम तेरे कलाम में लिखा है कि जब खुदावंद ही हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना इब्स है, जब खुदावंद ही घर ना बनाए तो मेमार का ईंटें और गारा लगाना बेफायदा है। खुदावंद हम जब तक तू हमें नहीं बचाएगा हम नहीं बच सकेंगे, इसलिए हम तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं तो अपने आसमान को खोल, अपने फरिश्तों को भेज ताकि खुदाम तेरा पाक रूह जो बेहतरीन मददगार है तेरे लोगों की मदद करे। तरस का खुदाम हम तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं, रहम कर दे, अपने नाम को जलाल दे खुदाम। तू प्यार करता है, तू तरस खाता है खुदाम, तू लोगों की दुआओं को सुनता है, तेरे नाम को जलाल देते हैं, इन लोगों के लिए शिफा को क्लेम करते हैं, इनके मसाइल के हल को तुझसे क्लेम करते हैं। तूने हमारी दुआओं को हमेशा सुना है, हम गवाहियों को कायम किया है क्योंकि तू जिंदा खुदा है। तेरा शुक्र करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। खुदम हमने जो इल्तिजाएं मुनाजातें तेरे हुजूर में रखी हैं, खुदम तूने उनको सुना है और मेरा ईमान है कि खुदम तूने बख्श दिया है। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदम यीशु मसीह के नाम से मांग के और पा लेते हैं, आमीन। और इस तरह जिस तरह हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखाया, हम मिलकर कहेंगे, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूर माफ, हमें आजमाइश में न ला और बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त, शराकत, हाज़िर जमायत और तमाम कलीसिया और ईमानदारों के साथ हमेशा होती रहे, आमीन।
खुदावन आप सबको बरकत दे। ज़रूर हफ्ते की शाम 9 बजे हमारे साथ ऑनलाइन हो ताकि हम मिलकर खुदावन के नाम को जलाल दे सकें। और ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों अजीज़ों के साथ शेयर करें ताकि वो भी खुदा के कलाम से बरकत पाए। खुदावन आप सबको बरकत दे। थैंक यू।